Hello, my lovely people. Welcome to my channel. I hope you all are doing fine and you all are safe. Guys, today I'm going to create this traditional South Indian look which is inspired by Shraddha Kapoor. Actually, मैंने अपने Instagram में question पूछा था कि which kind of a look do you want me to create, and many of you were like create a South Indian look, create a Marwadi look. So I decided to create different looks from different states, and today I'm creating South Indian look inspired by Shraddha Kapoor. And आज मैं थोड़ा English हिंदी blend करके बोलूँगी क्योंकि some of my subscribers are from South India and I was there in Chennai for like almost 2 years, and I just love the eternal feminine beauty carried by the women there, so graceful. तो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है करने का. एंड ये जो ज्वेलरी मैंने आज पहना है, दिस इज़ ऑल्सो गिफ्टेड बाय वन ऑफ माई डियर फ्रेंड अर्चना नडीला फ्रॉम चेन्नई. थैंक यू सो मच दी. एंड सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो. हाँ, बस एक चीज़ मिस हो गई. मेरे पास गजरा नहीं था आज क्योंकि लॉकडाउन था, तो आई डिडंट वेंट आउट एंड purchased. So this was the only thing which I missed. And so I have clipped some fake flowers. So let's start the video. First thing first, I'll apply a moisturizer from Pond's Hyaluronic Acid Moisturizer, and this is perfect for oily skin type people. Before doing any kind of a makeup, just make sure to moisturize your face pretty well so that the makeup glides on smoothly and the glow from within comes out. Next, I will be using Faces Canada Ultimate Pro Ace of Base Primer, and this has a different texture, guys. I just love the formula because it's kind of tinted and it gives a subtle glow to your face. And I'll also apply it on my eyelids because I'm not using any other eyeshadow primer. So this is the thing which I'll apply. Today we will start by our eye makeup, and first we will apply this L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer to make the skin tone even. एंड क्योंकि ये एक इंटेंस ब्लैक स्मोकी आई लुक है, इसलिए पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ ताकि किसी भी तरह का फॉल आउट मैं बाद में क्लियर कर पाऊँ. ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक 219 कंसीलर ब्रश. सो गाइज, एज आई हैव मेंशन्ड दैट आई वाज इन चेन्नई फॉर ऑलमोस्ट 2 years, so I just wanted to share something which I've observed living there. People there are not much into makeup. They are very simple, very grounded, and they love the tradition, the culture, the attire, and so do I love that. So just excuse me if I did anything wrong in the video because this is just my version of a traditional South Indian look. It's just a small effort. So please just excuse me if I did anything wrong. So coming back to the makeup, I'm setting the concealer with this translucent powder from Sugar. I'm in the shade Cappuccino. एंड हम ये ट्रांसलूसेंट पाउडर इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो कंसीलर हमने लगाया है वो सेट हो जाए एंड क्रैक ना करे. अब मैं करूँगी अपने आईब्रोज़, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग रिमेल ब्राउ किट. सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रश कर रही हूँ, उसे फिल कर रही हूँ. एंड फिल करने का कोई ऐसा प्रिसाइज फॉर्मूला नहीं है. आजकल बुशी आईब्रोज काफ़ी ट्रेंड में हैं, एंड क्योंकि हम पार्लर्स नहीं जा रहे हैं तो वैसे भी हमारे आईब्रोज बुशी हो ही गए हैं, तो अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है. बट क्या कर सकते, कोई उपाय नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल. बट मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपने घर पे. आईब्रोज कैसे करती हूँ उसका मैंने वीडियो बनाया है, लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो देख सकते हो. सो द फॉर्मूला टू अचीव अ परफेक्ट आईब्रो इज़ दैट Step 1, brush it downwards, fill it. Step 2, brush it upwards and fill it, and you're done. Next, I'm taking this Wet n Wild eyeshadow palette and taking this as a transition shade. Here I'm using PAC 260 blending brush to apply this on my crease. Whenever you are creating a smoky eye, just remember that the first step of your makeup should be applying the lightest shade from your palette. ऐसा हम इसलिए करते हैं, सबसे lightest shade को अपने crease पे इसलिए लगाते हैं ताकि जो smoky eye look हम create करें वो बिल्कुल gradient effect दे हमें, बिल्कुल shadow सा create हो, and that looks perfect. जब आप ये स्टेप करो तो जस्ट मेक श्योर कि अपने इनर कॉर्नर्स पे भी आप अच्छी तरीके से लगाओ, एंड थोड़ा सा ना हाई लगाओ. आप अपने क्रीज एरिया को थोड़ा सा हाई बनाओ, जो एक्चुअल है उससे ऊपर लगाओ ट्रांजिशन शेड को. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड ये डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, एंड इसे अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल अपने क्रीज एरिया पर. एंड क्योंकि जो ट्रांजिशन शेड है वो हमने क्रीज एरिया से थोड़ा सा ऊपर जाके लगाया था, तो ये जो ब्राउन कलर है ये बिल्कुल उस कलर के नीचे लगाना है, एंड ऐसे लगाना है कि दोनों कलर्स बिल्कुल ब्लेंड हो जाए. सो गाइज, जस्ट रिमेंबर दैट
to create a perfect smoky eye or to create any sort of eye makeup, blending is the key. So just blend and blend. Give your time to blending. Guys, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी कर ले रही हूँ, आराम से कर ले रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे भी टाइम लगा था एंड पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे. हर स्टेप के बाद आपको यहाँ ब्लेंडिंग करनी है ताकि जो दो कलर्स आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाए एक दूसरे में. एंड आप देख सकते हो कि फिर से मैं अपने क्रीज एरिया को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ विद द लाइटेस्ट शेड एंड इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. The USP of this look is the eye area, and we have to create that as dense as possible, and for that I am taking Maybelline New York Gel Liner, which is a perfect dupe of Inglaw Gel Liner, which is a high-end brand. एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाता है इसमें. आप जब भी स्मोकी आई करो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी स्मज प्रूफ काजल ही आप यूज़ करो हमेशा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्मज हो जाएगा तो वो मेकअप आपका बहुत ख़राब हो जाएगा बाद में. ये जो काजल है बिल्कुल सेट रहता है एंड मेक श्योर कि आप अपने आई लिड का जो एरिया है ना वहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी वाइटनेस ना छोड़ो आप. तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है. आप देख सकते हो इनर कॉर्नर्स तक मैं इस काजल को ले जा रही हूँ ताकि बिल्कुल भी वाइटनेस ना लगे, कहीं भी आपको गैप्स नहीं दिखनी चाहिए इस लुक में. सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम इसे ब्लेंड करेंगे ब्लैक आई शेडो की हेल्प से. तो इसलिए मैं बस अपने आईलिड एरिया पर एंड क्लोज टू द लैश लाइन फोकस करके इसे लगा रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्लैक आई शेडो. द पैलेट इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन, बट आप कोई भी ब्लैक आई शेडो ले सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ अ डोम ब्रश, दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, मैं इसे लगा रही हूँ अपने आईलिड एरिया पर एंड सेट कर रही हूँ अपने काजल को. एंड अब आप जो देख रहे हो ये लाइन जो आपको दिख रही है ना बिल्कुल ब्लैक और ब्राउन के बीच में जो लाइन है, ये लाइन आपको डिफ्यूज़ करना है. दैट हैज़ टू बी द एम. एंड बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी लाइन है, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए. हर कलर ऐसा लगना चाहिए कि एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहा है, मेल्ट हो रहा है एंड इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो जस्ट हैव पेशेंस. नाउ अब छोटा सा एक ब्रश है जो फ्री में आया था इस वाले पैलेट में. जनरली आपको एक पैलेट में एक छोटा सा ब्रश मिलता है, बस उसकी हेल्प से मैं एक ब्राउन जो डार्क ब्राउन कलर है ना जो मैंने लगाया था सेकेंड टाइम, उसको ही मैं फिर से यहाँ पे लगा रही हूँ एंड दोनों कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ. सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस मेबलिन कोलोसल काजल एंड इसे टाइट लाइन कर रही हूँ अपने आइज़ पे. जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी गैप्स नहीं दिखनी चाहिए, तो इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मोकी आई में. एंड बिफोर मूविंग टू द लोअर लैश लाइन, पहले मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन का मेकअप करूंगी. एंड जब भी ऐसा कुछ मेकअप होता है जो फ्लॉलेस लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेहनत कामयाब हुई. एंड बैकग्राउंड में मैंने एक तमिल म्यूजिक लगाया था, सो आई वॉज जस्ट ग्रूविंग टू द वाइब एंड आई वॉज जस्ट लविंग इट. The foundation I'm using today is from L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation in the shade 104, and I have mixed a very tiny amount of moisturizer in it so that to have an extra glow. You can mix any moisturizer you have, and इसे डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पर लगा रही हूँ. एंड with the help of this wet beauty blender I'm blending it. How to use this beauty blender, I have made a separate video on it. If you want to see, I have linked the video in the description box below, and also all the products have been linked in the description box. In case if you want to buy anything, just check it out. बेसिकली आपको ऐसे डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड करना है एंड ड्रैग नहीं करना है अपने ब्लेंडर को. एंड मेक श्योर कि आप अपने फॉरहेड एरिया पर, साइड्स में, हर जगह अच्छी तरीके से लगाएं ताकि इवन टोन लगे स्किन हर जगह. एंड जो भी एक्स्ट्रा बचे जस्ट मेक श्योर कि आप उसे अपने ईयर्स एरिया पर एंड अपने गले पे एंड अपने जहाँ भी आपको एक्सपोजर दिख रहा है. एक्चुअली जब भी हम ब्लाउज वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा सा स्किन ज़्यादा दिखता है आई गेस, तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छी तरीके से हर जगह ऐसे ब्लेंड करें. All my friends, especially the South Indian friends, please comment down below and please let me know your thoughts on this look. And पूरे look का मैंने फोटो Instagram पे लगाया है, साड़ी and everything. So if you want to check it out, please follow me on Instagram. And वहाँ पे मैं और भी ज़्यादा ब्यूटी टिप्स एंड ऐसे फैशन टिप्स देती हूँ, so you can follow me there. नेक्स्ट मैं सेम ट्रांजिशन शेड लूँगी जो मैंने ऊपर लगाया था, सेम लूँगी एंड लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी इसे. ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो पूरा आई मेकअप है एक सा लगे. बिल्कुल वो जो ट्रांजिशन है आप देखो बिल्कुल गोल सा दिखना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल. तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कभी मिस मत करना. सेम मेबलिन न्यूयॉर्क का ये जेल काजल लूँगी एंड इसे मैं लगाऊंगी एज अ काजल इन द वाटर लाइन. एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा काजल है, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, स्मज प्रूफ है, बिल्कुल इंटेंस है एंड
बहुत ही हाई एंड ब्रांड्स में ऐसे काजल आता है, अफोर्डेबल में सबसे अच्छा यही काजल लगता है मुझे। एंड आप इसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड काजल। दिस कैन बी परचेज्ड इन नाइका, अमेजन, मिंत्रा, सभी जगह आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड ये ब्रश इसके साथ फ्री में आता है। एंड लास्टली आई विल स्मच दैट काजल विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक आई शेडो। एंड गाइज, स्मोकी आई लुक इज़ ऑल अबाउट स्मचिंग एंड ब्लेंडिंग। अगर आप जितना ज़्यादा ब्लेंड करोगे, जितना ज़्यादा उसमें स्मचिंग में टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपका लुक परफेक्ट आएगा, चाहे वो कोई सा भी लुक हो। एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ अपने वीडियोज़ में, बट मेरा मोटिव ये होता है कि आप कुछ सीख के जाओ यहाँ से। अगर मैं बस मेकअप करके निकल लूँगी एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो दैट डजंट सर्व माई पर्पस। एंड लॉकडाउन में मेकअप वीडियोज़ बनाने का मेरा रीज़न ये है कि आप अपने मेकअप स्किल्स को इन्हांस कर पाओ। गाइस, ट्रस्ट में, अगर आप एक बार मेकअप सीख जाओगे, आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो पार्लर ना जाके। ट्रस्ट में, मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ मेकअप के लिए। एंड पार्लर बस जाने का मेरा रीज़न रहता है आईब्रोज एंड मतलब थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स करवाना, जो कि अभी नहीं कर पा रही हूँ। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल बुशी हो गए आईब्रोज। बट अदर देन दिस मेकअप एंड स्टफ़ के लिए मैं कभी भी नहीं जाती हूँ पार्लर। एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखो इससे एंड आप अपनी मेकअप स्किल इन्हांस करो। द लास्ट स्टेप इज़ हाईलाइटिंग योर इनर कॉर्नर्स एंड योर ब्राउ बोन एरिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मेकअप इज़ ऑल अबाउट दीज स्मॉल ट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में आप परफेक्ट ना होगे, आई नो, बट धीरे धीरे आपकी परफेक्शन ज़रूर आ जाएगी। आई एम यूजिंग L'Oreal Paris Lash Paradise Voluminous Mascara and guys, this is such a beautiful long lasting waterproof mascara। इसे लगाने के बाद आपको अलग से कोई भी फॉल्स लैशेज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के वीडियो में मैं कोई अलग से फॉल्स लैशेज़ नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सही इफेक्ट देता है। एंड लोअर लैशेज़ पर भी मैं इसे लगाऊंगी। एंड दिस कम्प्लीट्स माई आई लुक एंड आई जस्ट टोटली लव दिस। जैसे कि आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। नेक्स्ट मैं चलती हूँ अपनी फेस मेकअप की तरफ। एंड फॉर दैट फर्स्ट आई एम कंटोरिंग माई फेस यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कंटोर पैलेट। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट कंटोर पैलेट। तो इसे मैं अपने नॉर्मल जो एरियाज़ होते हैं कंटोरिंग के, उसे कर रही हूँ कंटोर, लाइक माई हॉलोज ऑफ द चीक्स, अपने जॉ लाइन एरिया पर, अपने साइड्स ऑफ द फॉरहेड एरिया पर, अपने नोज़ एरिया पर। सो जो फ़ोटो मैं रेफ़र करके आज मेकअप कर रही हूँ श्रद्धा कपूर का, उसमें आप देख सकते हो काफ़ी चिज़ल्ड लुक रहता है उसमें। सो आई जस्ट वांट टू अचीव दैट। काफ़ी ब्रॉन्ज्ड काइंड ऑफ मेकअप था वो, तो इसलिए मैं आज ब्रॉन्ज़र भी यूज़ करूँगी इसके ऊपर। दिस पैलेट इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड जहाँ मैंने कंटोर किया था जस्ट उसके ऊपर मैं इसे ब्रॉन्ज करूँगी। ब्रॉन्ज करने से क्या होता है कि आपका फेस बिल्कुल डिफाइंड लगता है। आपके अगर अगर फेस में फैट है जैसे कि मेरे है तो आपके वो छुप सकता है। अगर आपकी गॉड गिफ्टेड अच्छी स्कल्प्टेड फेस है तो आपको ये सारी स्टेप्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ब्लश एंड आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का ब्लश इन द शेड कॉकटेल पीच एंड दिस इज़ सच अ प्रीटी पीची कलर। ऐसा ही कुछ लगाया था श्रद्धा कपूर ने, तो इसलिए मैंने यही कलर सिलेक्ट किया है। एंड अब मैं पूरे मेकअप को सेट करूँगी विद दिस ड्यूई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ फ्रॉम निक्स एंड बहुत ही अच्छा है। एंड गाइज, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप सेटिंग स्प्रे लगाओ तो आप अपने आईज़ को इस तरीके से ढक लो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वेन एवर आई पुट सम स्प्रे ऑन माई आईज़ तो क्या होता है कि जो मेकअप है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गिरता है नीचे, थोड़ा फॉल आउट्स होने लगते हैं उसके बाद। तो ये बस मेरा ट्रिक है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही लगाती हूँ। नेक्स्ट ये न्यूड कलर लगा रही हूँ मैं फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड शेड नेम एंड एवरीथिंग आपको दिख जाएगा नीचे में। एंड गाइज, ये एक पहला लिपस्टिक है ना जिसे मैं 3 से 4 बार परचेज कर चुकी हूँ। ये बहुत ही प्रिटी कलर है एंड इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये लिप ग्लॉस। ये है फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्टेप। एंड मैंने पहले बार तो लगाया बट बाद में मैंने इसे थोड़ा सा लाइट भी कर लिया क्योंकि आई डोंट थिंक कि ग्लॉस इस लुक के साथ जा रहा था। One more tip from today's video you can take is that whenever you apply some gloss or satin lipstick, just use this trick and after this the lipstick won't be there on your teeth। जो भी आपके दांत में गंदा सा दिखता है ना लिपस्टिक, वो इस ट्रिक के बाद नहीं दिखेगा। एंड गाइज, मैं हाइलाइटर लगाना बिल्कुल भूल गई थी, तो लास्टली मैंने ये लगाया है एंड अपने हाई पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगी। यूज़ किया है मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाईलाइटर। दिस इज़ सच अ प्रीटी शैम्पेन कलर, आई जस्ट लव दिस। एंड इसे मैं अपनी यूजुअल एरियाज़ पे हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि अपने चिन एरिया पर, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, थोड़ा सा अपने फॉरहेड पर भी। एंड दिस कंप्लीट्स माई लुक। द लास्ट थिंग आई एम वेयरिंग इज़ दिस नेकलेस गिवन टू मी बाय माई डियर फ्रेंड फ्रॉम चेन्नई, अर्चना दी। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक कि ये लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है।
मैंने पहले सोचा था कि मैं इस लाइनर की हेल्प से बिंदी लगा लूँगी, बट फिर मुझे लगा कि ये उतना डीप नहीं लग रहा है, तो मैंने फिर रियल बिंदी लगाना ही सही समझा एंड that was the perfect decision because bindi gives that Indian wala look and I think this looks good. So guys, this was my version of traditional South Indian look with a bit of modern smoky eye look touch in it and I think ये combination बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है and I know कि आप जब भी इसे create करोगे आपको बहुत सारे compliments मिलने वाले हैं and don't go anywhere because मैं अभी आपको इसका पूरा look दिखाने वाली हूँ. आई हैव लिटरली बेग्ड अभिषेक टू टेक फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ माइंड सो दैट मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पाऊँ. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करना ताकि आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर पाओ मुझसे एंड ये लोग देख पाओ. एंड ये मैंने फेक फ्लावर्स लगाए थे, वैसे तो गजरा लगाया जाता है बट मेरे पास वो था नहीं फ़िलहाल के लिए. सो गाइज दिस इज़ द होल लुक. ये साड़ी दिस इज़ फ्रॉम कांचीपुरम. दिस इज़ द ट्रेडिशनल कांजीवरम साड़ी. तो मैंने कांचीपुरम जाके ये परचेज़ किया था जब मैं चेन्नई में थी एंड बहुत संभाल के पहनती हूँ मैं इसे, बहुत स्पेशल ओकेजन्स में. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एंड आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को देखना एंड आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना. सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडे गाइज. मेरे साइड से आपको आज वनक्कम जो नमस्ते कहते हैं साउथ इंडिया में एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.